before, let me start the recording. So good evening, everyone. How is the Josh? Yes, sir. High or low? Hi. Pakka? Hi. Okay. Same decorum and protocols, which you all know. You have to open your microphone. Then you have to speak. But let the topic or the subtopic finish. You can raise your hand also, or you can type the text in the message box also. In case the problem is not solved here, you can post it on the help desk. That is your WhatsApp group. Completion of 13 module is compulsory. Keep on completing that also. And at the end of the session, like when you have completed all 13 modules, just take a screenshot and attach it in the classroom so that I will be knowing that you have completed that. And there is a checklist also. Keep checking what is been taught. Have you taken it or not? So today we are going to learn, today is the third day. We are going to learn about Google Slides, Google Sites, and Google Forms. We all thing. This is of Google Form. So you have to create a Google Form. How to create, you have to know. Add and edit different type of questions in Google Form. There are various types we use for MCQ only, but there are many which we can use and we will know. Choose a response destination, edit form setting, send a Google form to user, view responses, using Google Forms for feedback, grading with Google Form and quizzes, using Google Form to collect data, using Google Form as a grading rubric, and embed video in the Google Form. So we all know it is a versatile tool in which we take quizzes, surveys, and feedback. So let me move to the live demo. I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Okay. I'm going to a new tab. For Google Form also, there are 3-4 ways. You can open it. On the Omni box, you can write forms.google.com. We will get the form. You can also go to the waffle. This is the 9 dot known as waffle. You can also go from here and select form. You can open it here. You can go to Drive. Select the specific folder, whichever folder you want the form to be in. My Drive, I want the form in any of the folder, and in that folder, create the form. So you click on plus sign, you will get form here, and you can create the form. You want a form, blank form. You want a quiz. So automatically quiz settings will be on there. If you want a blank form, you wanted to go for a survey and all feedback, you can go for a blank form, or you can select from templates. There are many form as a template. You can select a template also for surveys, quiz, whatever you want from the template.
Another one is you can right click anywhere on the blank space, and from here also you can open Google Form. So there are 4 ways you can open a Google Form. So now let's start the Google Form. So I have opened this. Either I want to go for a blank quiz. When I will go for a blank quiz, the marks will be allotted there. You have to only make the changes in the setting that I want this much marks for each question, or you want to separate that question for specific marks. So you can, that changes you have to do. If you want to start with blank one, click on blank. All the settings here you have to do it. So this is a new form. First is you have to give the title here for which you are going to use. If it is a test or an assignment, you will give assignment here. Okay. Then give a title. When you will click, you will get the same thing there also. Automatically it gets there also. If you want to change, you can change also. Batch 2. Okay, again you have a star and drive here. When you mark it star, it will save into your star folder. If you want to shift this else, from here only you can shift the form anywhere else. You will get the folders, all the folders here. Select whichever folder you want. You select it and set your form to that specified place. This is a demo folder. I am taking it in a demo folder. I'm moving it here. So it is in my demo folder. Okay. Now coming here, I have given this. I want of picture also here. So how to go for that picture? It is, you can go to customize theme. You will get here theme. You want to change the header also, the text of the header. You can change size, questions. To add a header with an image, you can select the header here. Either you select from the given one, the topics are given, the pictures are given, you can select from here, or you want to upload from your system. You have created something and you want to upload that. So you can also select that. I have selected the header for classroom. In the same way, we can select the header for this also from Canva. We can create from there also. Let me check the header. I am using a classroom header only here. See, I will get the same. And you can select from Canva also. See, I got that same header which I have used in the classroom also. I have written done. It will be added to my. Generally for school, we give a school logo and all. If you're creating a form for children, you can make it more beautiful using Canva. It can be a bubbly one that. You can select the color from here, whichever color. Just now, can you see the brown color is selected, maroon, and the color of the form is maroon. I want to change it. It is orange now. You want to change the background related to maroon. You can change the background of the form. You can change the color also. You can change the, when whichever color you select for the text or that, you can select the background also according for that. Grayish, red. Then we move. We can check the heading also. We can change the font style. We can change the question, like what we have written, we can change. We can add something there. Then coming to the question part. This has been done. Now adding question.
Now, multiple choice, we all know what is multiple choice. We give 4 options, 5 options, 6 options, according to that it takes. So when we select for multiple choice, this is a circle one. This always remember when you are test also. When there is a circle, that means only one option can be correct. You cannot go for multiples. If there is given a checkbox, that means more than one option is correct. That is why a checkbox is given. This square box. This shows that multiple selections we can do. The basic change for this, we take both for multiple choice. Here we can take both, and here more than one selections can be. You give a question, there can be a answer more than one. So you select checkbox for that type of question. If you are going for a question, only one answer is multiple choice, circle. Then comes your short answers. Short answer is generally used for 1 or 2 line answers. So we use short answers. Paragraph we give for more than 2-3 lines. So we go for paragraph. Seven. Now class 7 has number of sections. So I've written only section name here. Add all. See A, B, C, D. By default it will take, and you want to add more, you can go for it. Now when you see the preview of this form, you will see that it comes as a drop down. Class 7 is written and select the correct option. You can go for this also for multiple choice answers also. You can use drop down. You have given the answer. In these answers, only one is correct. The boy can select the answers. But generally we use for class sections and all. Then comes file upload. File upload goes for your file uploading. See, there is a question given. I want a child to submit an image or a scanned this answer sheet or something like that. So I will use file upload. Allow only specific files. If you switch it on, whatever you want from the children, you click on the document. You want only that thing the student can submit. अगर उसने इमेज सबमिट करने की कोशिश किया तो it will not accept and it will say give a warning कि you have to submit spreadsheet, PDF, video, presentation, drawing, image, audio, whatever you want, just click on that. And the child will only submit the image now. Now, maximum number of files. You want 2 images, you want 3 images, number of images you want, you can select it from here. Then maximum file size. It is from 1 MB to 10 GB. So 1 MB से लेकर के 10 GB तक की फाइल एक स्टूडेंट सबमिट कर सकता है. You have to define it that file should be. आपने देखा होगा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरते हैं और इमेज अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो देयर दे स्पेसिफाई द साइज ऑफ द फाइल, साइज ऑफ द इमेज कि इतना ही होना चाहिए. एंड व्हेन यू गो बियॉन्ड दैट लिमिट, इट सेज इट विल नॉट एक्सेप्ट दैट. ठीक है, एरर देता है. ऑल द and you can view the file from here also. ये फोल्डर में किस फोल्डर में जा रहा है, that will update you here.
Now see, I have set this question and I want to check the preview how it looks. See, class 7 is there. It is asking to add file. If I want to add something else, image, I have given their image. If I want to add something else there. So there was no document. It is saying, let me go to my drive. Meeting report. There is no image. That's why it is saying no. Select the file from device. See, only image file it is showing. सारी फाइल्स नहीं दे रहा है. जो सिर्फ इमेज वाली फाइल थी, अगर मैं डॉक्यूमेंट में भी चली जाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे सेटिंग किया है सिर्फ इमेज इंसर्ट करने के लिए. सो ओनली इमेज विल बी इंसर्टेड हियर. इट विल नॉट शो एनीथिंग. जिस भी फाइल में इमेज होगी वो फाइल ओपन हो जाएगी. यहाँ पे देखिए, इस फाइल में इमेजेस थी, ये फाइल ओपन हो गई. जिस फाइल में इमेज की जगह डॉक्यूमेंट्स थे वो फाइल ओपन नहीं हो रहे थे. एंड आई कैन सेलेक्ट द फाइल एंड अपलोड इट. क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. After drop down and file uploading, linear scaling. You must have seen in the feedback form. There was linear scaling. ये है linear scaling. Not much, very much. When you go for linear scaling, it gives you option here 1 to 5. 1 में excellent अगर हमने दे दिया, और 2 में 5 में मैंने दिया माइंड ब्लोइंग. It is a feedback. Now I want to check the preview. See, 1 के लिए excellent यहाँ दिख रहा है, 5 के लिए mind blowing दिख रहा है. So this is linear scaling. Now after this, multiple choice grid. Multiple choice grid also I have given in my feedback form. This is your multiple choice feedback. एक मैंने क्वेश्चन दे दिया, नॉट रेलिवेंट, रेलिवेंट, वेरी रेलिवेंट, नॉट अटेंडेड, एंड अलग अलग ऑप्शंस दे दिया. दिस इज हाउ इट लुक्स एंड हाउ टू गो फॉर इट. रो 1, रो 2 कॉलम, एड कॉलम्स. अब रो 1, रो 2 में क्या था, ये है. दिस इज रो 1, रो 2. कैन यू सी हियर? दिस इज रोज. Explanation of the speaker, content of presentation, explanation content, doubt solving, not relevant, relevant, very relevant. ये आ गया. When you go and see the preview of this question, it will look like this. Then it मैम आवाज केवल हमें नहीं सुनाई दे रही है. मैं फिर से ज्वाइन करूं या सबके साथ में नहीं प्रॉब्लम मैम, है? नहीं मैम, मैम की आवाज प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू. प्रॉब्लम है. आवाज नहीं आ रही थी मेरी. नो मैम. बीच में गायब हो जा रही है आवाज. अभी आ रही है. यस मैम. Okay. So I was telling about this one, grid वाला, grid scaling. मैं फिर से बताऊं, ये multiple choice grid. Am I audible? यस मैम, यू आर ऑडिबल. Yes, ma'am. मल्टीपल चॉइस ग्रिड में फिर से बताऊं. ओके.
So when we go and select for multiple choice grid, ये है मल्टीपल चॉइस हमने सेलेक्ट किया. जब हम मल्टीपल चॉइस के साथ ग्रिड करते हैं, ये रोज हो गए और ये कॉलम हो गया. तो रोज और कॉलम कैसे हो गए? रोज में हमने डाल दिया क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्पीकर कैसा था, कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन कैसा था, एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड कंटेंट कैसा था, हमने क्वेश्चंस डाल दिए. जैसे द फॉलोइंग, इसको इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ऑप्शंस होते हैं ना बच्चों के संग, किसी के संग कुछ भी मैच करा लिया, मैच द फॉलोइंग में. तो मल्टीपल चॉइस ग्रिड मैच द फॉलोइंग जैसा ही है. जब हम इस तरह से दे दिए, ए वाले कॉलम में कुछ और, बी वाले कॉलम में कुछ और दे दिया, से मैच कराना है कौन सा उसके लिए कर, तो हमें इस फॉर्म में आता है. हमने लिखा, मान लीजिए यहाँ पे लिखा पार्ट्स ऑफ बॉडी चल रही है, नोज, नोज इज रिलेटेड टू स्मेल, मैंने स्मेल यहाँ लिखा है, तो बच्चे ने ये वाला ग्रिड सेलेक्ट कर लिया. मैंने लिखा यहाँ पे हैंड के संग नोज तो जाएगा नहीं, हैंड के संग जाएगा वर्किंग करने के लिए, तो वो थे, तो वर्क वाले में उसने टिक कर दिया. तो दिस इज हाउ वी कैन यूज मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द ग्रिड, मल्टीपल ग्रिड वाले से. ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया. देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेकबॉक्स ग्रिड. अब यहाँ पे हर एक ऑप्शन का, जैसे आप देखो, व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन वन, यू कैन नॉट गो फॉर अनदर. दो नहीं हो सकता इसमें चेक, एक ही होगा, कोई एक कर रहे हैं तो दूसरा हट जा रहा है. तो दिस इज मल्टीपल चॉइस वन, सर्कल है. अब अगर यहीं पे स्क्वायर हो, अब इसी पे स्क्वायर हो जाए, लाइक दिस इज मल्टीपल चॉइस ग्रिड, सर्कल. अब ये चेकबॉक्स ग्रिड, नाउ देर आर मोर देन टू आंसर, वन आंसर करेक्ट. क्या मैंने दिया? माउथ. ठीक है, तो आंसर कैन बी ईटिंग, ब्रशिंग, कुछ भी डाल देते हैं. यहाँ पे मैंने दिया फेस. I lost my connection. Am I audible? Yes, ma'am. You were. Yes, Right. ma'am. Now you are. ठीक है, यहाँ पे मैंने लेग दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया वॉकिंग. अब नाउ यू कैन सी द प्रीव्यू. माउथ के साथ हम ईटिंग भी डाल सकते हैं, ब्रशिंग भी डाल सकते हैं. हैंड के साथ राइटिंग है और ईटिंग भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ब्रशिंग कर सकते हैं, हाथ उठाएंगे तभी ब्रशिंग होगा. लेग के साथ हम वॉकिंग ही कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ दे कैन सेलेक्ट द आंसर. इसमें से अगर आपने टिक किया है कि ये 3 आंसर करेक्ट है और उसने ये 2 करेक्ट किया है, तो उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. यू हैव टू सेट द आंसर्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, हाँ या ना? Yes, ma'am. Okay. Now after this checkbox we go for date. डेट में आपके पास यहाँ पे चॉइस आ जाती है कैलेंडर की. The child can select the date from here. If you give any question like when you celebrate Teachers Day,
This is a date question. I'm going for preview. It's this type of format. When you select, so you will select from here. This is July going on. The Teachers' Day falls in September. It is on 5th September. So he will select 5th September here. So this is date type format. Now after this time, when you at what time you have your school? मैंने क्वेश्चन दे दिया. At what time you board your bus? I'm just giving easy example. Now you can see the preview. Now he is getting the time format. He will just write the time 7 and whether it is AM or PM, 7:15, if it is 7:15 AM or PM. He will just define it from here and he can submit. So this is date type question. I think question is clear to everyone. I have taken all the questions from here. Any doubt anywhere? If you have created a question, you want to, somebody has raised their hand. हाँ जी रानी मैम. एक बार डेट वाला सेक्शन प्लीज फिर से बता दीजिए, थोड़ा सा मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी. ओके. सो जब आप डेट का टाइम देते हैं, एट व्हाट टाइम यू बोर्ड द बस एंड यू हैव सेलेक्टेड द टाइम फ्रॉम हियर, टाइम ऑप्शन. So what will be the answer given by the student? He will get this format without any date. Okay, he will get the option like this. हमने यहाँ पे टाइम दे दिया 7:20. Whether it is AM or PM, he has to decide from here. He can decide and submit the answers accordingly. Clear? Clear? Okay. Yes, Yes. ma'am. So this was questions. Now if you want to copy this question, date का आपको एक और question करना है, so you can just copy it from here. Just copy. See, the same format appeared in the next box also. You want to delete, you can delete it from here. If it is a required question, you can switch it on. If the child can leave that question, it is just for your information. If he writes, if he doesn't write, it doesn't matter. So make it not required. बच्चा लिख दिया, well and good. बच्चे ने नहीं लिखा, no problem. लेकिन अगर बच्चे को मैंने इसको कर दिया required, that means when the child will fill this date one, time one, then only he can go for the next question. मतलब वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा जब तक कि रिक्वायर्ड आंसर्स को नहीं कर लेता. आंसर टाइम यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, क्लियर? नाउ गोइंग टू रिस्पॉन्स शीट. नाउ क्वेश्चन इज ओवर. यहाँ यू कैन सी दिस प्लस साइन इज फॉर क्वेश्चन, एडिंग अ क्वेश्चन, एक अलग क्वेश्चन ऐड करने के लिए. नाउ इंपोर्टिंग क्वेश्चंस. You want to import any question from the Google form. कोई पहले से Google form बनाया हुआ है, वहां से कुछ questions उठाने हैं. You can click on this. All the Google form will open here. Can you see here? मुझे कोई भी यहाँ से question उठाना है. I will click that form. All the question will appear here. Whichever question I want, I will just select that question. Import question. 8 question imported. See. मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंपोर्ट किया, मेरा फीडबैक फॉर्म तैयार हो गया फिर से.
से एक बार इंपोर्ट क्वेश्चंस। इंपोर्ट क्वेश्चंस, मैंने एक क्वेश्चन उठाया, मान लो दिस इज फॉर जेसीई, मैंने यहाँ से उठा लिया, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, मुझे ये क्वेश्चन दिखा, मैंने उठा लिया। सबसे नीचे देखो, wherever my cursor is it will appear what is the name of your school, यहाँ पे आ गया। मतलब मैम आप किस साइड में, जो ये छोटा सा टास्क बार पीछे बनकर आ रहा है जहाँ पे प्लस साइन है, इसी में ये- इंपोर्ट क्वेश्चन? हाँ ये है ना सेकंड वाला, अच्छा ओके ओके ठीक है। मैम एक सॉरी स्मिता मैम, जैसे इंपोर्ट क्वेश्चन किया तो जो आप एकदम लास्ट में नीचे जब आप क्लिक करें तो इंपोर्ट क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, जब आप इंपोर्ट मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे इसके नीचे इंपोर्ट करना है, हाँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे आ करके अगर इसके बीच में मुझे कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगी। और मैम क्वेश्चंस में जो स्टार रहते हैं, स्टार लगे रहते हैं, वो कैसे आते हैं? स्टार का मतलब होता है कंपल्सरी है वो क्वेश्चन, अभी मैंने बताया ना। नहीं वो तो पता है, मतलब वो कैसे लगाते कैसे आप इसमें? कुछ नहीं लगाना, ये रिक्वायर्ड कर दिया ना यहाँ पे, ओके ये रिक्वायर्ड दिख रहा है, जब हम इसके डेमो में अच्छा देखेंगे तो ये स्टार लग जाएगा यहाँ पे। ये ओके रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, ये बताता है कि ये रिक्वायर्ड है, ये देखिए ओके ये स्टार दिख रहा है, यस मैम। ये सब रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपको भरना जरूरी है। वो जब ठीक है? मैं रिक्वायर्ड पे ऑन करूंगी तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा स्टार। वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो क्वेश्चन आपका कंपल्सरी है, बच्चे को करना ही करना है, रिक्वायर्ड कर दी। जनरली हम जो ही क्वेश्चन बनाते हैं वो रिक्वायर्ड होता है, ओके हमें बच्चों के आंसर्स चाहिए तभी हम डाल रहे हैं। जी ये वाले जो रिक्वायर्ड और अनरिक्वायर्ड वाली चीज होती है वो जनरली यूज होती है सर्वे फॉर्म के लिए। जी ठीक है, हम कभी सर्वे कर रहे हैं कि कोई क्वेश्चन ठीक हमें है, नहीं हाँ। रिक्वायर्ड है, अगर दे देता है सामने वाला आंसर तो ठीक है, नहीं देता है तो कोई बात नहीं, देन वी यूज दिस। या Okay, now adding title and description. When I click here, can you see? इसके ऊपर एक आ गया यहाँ पे टाइटल देने के लिए, अनटाइटल, ये एक सेक्शन है, इसमें यहाँ पे मुझे टाइटल देनी है, मैंने दे दिया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। कुछ भी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आंसर इन 8, ठीक है। अब उसके बाद मैंने ये डिस्क्रिप्शन देने के बाद, ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, आंसर इन 8 लाइन्स, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, अब इसके नीचे मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, एक्सप्लेन कंडेंसेशन, ठीक है, मैंने दे दिया। अब इसका प्रीव्यू देखिए, अच्छा इसमें सेक्शन लग गया है ना, जब मैं भरूंगी तभी आएगा। देखिए रिक्वायर्ड है, जब मैं भरूंगी, यहाँ पे ऐड फाइल है, जब मैं भरूंगी तभी आगे जा पाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म वो लगा दिया, इमेज, ठीक, टाइम दे, यहाँ पे भी टाइम दे दिया, कुछ भी टाइम दे दिया। नेक्स्ट, तब आई हम दूसरे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट सेक्शन पे। ये देखिए, ये सिर्फ हमें हेडिंग दे रहा है, कैन यू सी? ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, बच्चे को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अब सेक्शन में आ गए हो, नाउ यू कैन राइट द आंसर। क्लियर है? उसके बाद है ऐड इमेजेस, हमने यहाँ पे इमेज लगाना है, क्वेश्चन में कोई भी इमेज लगाना है। हमने यहाँ से या तो अपने फाइल से अपलोड कर देंगे, कंप्यूटर में होगा तो,
या कैमरे से क्लिक करके ले लेंगे। हमने कैमरा क्लिक किया, मेरी फोटो यहाँ से क्लिक हो गई। मैंने यहाँ पे दिखाया ये मोबाइल, कि मुझे ये मोबाइल के बारे में करना है। मैंने ये क्लिक कर दिया, इंसर्ट कर दिया, मेरी फोटो इंसर्ट हो गई इसमें फोटोज के साथ। कैन यू सी? मेरी फोटो ये फोटो नहीं चाहिए, आई विल रिमूव दिस फोटो। आई डोंट वांट दिस फोटो, आई वांट डिफरेंट इमेज। मुझे यूआरएल से लेना है, कहीं से कोई पिक्चर का यूआरएल ले लिया मैंने, फोटोज से लेना है, गूगल ड्राइव से लेना है, या मुझे सर्च करना है। मैंने सर्च कर दिया सोलर सिस्टम, और मैंने ये फोटो इंसर्ट कर दिया। Excuse me, Smita ma'am. अगर मैंने प्लैनेट्स के बारे में पूछा है तो एक्सप्लेन ईच प्लैनेट। प्लैनेट in 2 lines. The child will, yes. You have raised your hand. Yes, Smita ma'am, sorry to disturb you. Actually, I want to ask ma'am, insert the image from where you have get the option. I was not getting. Have at the left side, right side. Can you please show me once again, ma'am? ये देखिए, Yes, ma'am. दिख रहा है? From the ये right, दिया, from ये the right side corner. Okay, okay. Add the title, add image. Got ठीक it, है? ma'am. Got it. हाँ. अब मैंने नया सेक्शन इंसर्ट किया। अब आपने ये Thank you, इमेज ma'am. इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन दे दिया, हमने दिया अर्थ। अर्थ के बारे में 2 लाइन लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर दिया। ऊपर बच्चा आंसर पिक्चर देख रहा है, अर्थ के बारे में यहाँ लिखेगा। दूसरा क्वेश्चन दे, वीनस डाल दिया, वीनस के बारे में 2 लाइंस लिखना है, शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया। अब बच्चा यहाँ पे पिक्चर देखेगा और उसके साथ क्वेश्चंस भी करेगा। क्यों? मैंने कहा 1.5 बढ़ेगा। पापा कहीं हैं? अच्छा, अर्थ, कैन यू सी हियर अर्थ? अब बच्चा यहाँ पे ही कैन राइट एनीथिंग व्हाट ही वांट। सीइंग द पिक्चर हियर, ही विल राइट द आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्लियर? Question is based on, watch the video carefully and answer the given question. मैंने यहाँ पे डाल दिया and I have inserted a video here. So for video, I clicked on the video icon. I want to search a topic, जैसे मैंने कंडेंसेशन वाला किया था। वीडियो है, मुझे बहुत छोटा सा वीडियो चाहिए। I have taken a 3-minute video. You can see a video is there. I have selected the video and this video will be inserted in the form. Now I have given a question here. अब फॉर्म में चला गया और क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाल दिया। ये वाला क्वेश्चन मैं वहां से हटा करके यहाँ डाल देती हूँ। मैंने डाल दिया यहाँ पे क्वेश्चन। अब नाउ सी द वीडियो। Now see, the child will see the video.
Hello, friends. Today we'll learn about condensation and its forms: dew, fog, frost, and mist. Wow, you're prepared to study about this. Let's start. Now, after this, you can add a question, short answer, or multiple choice question, whatever it is. Based on this video, you can give the question, and the child will see the video and he will answer the question. Then comes add section. Just now you have seen when I was filling the form, यहाँ पे मुझे sections दिख रहा था. Let me. Now this is next. Can you see here next? When I divide my question paper into several sections, मैंने एक क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में जैसे मैंने फीडबैक फॉर्म बनाया, फीडबैक फॉर्म में मैंने सेक्शंस लगाए हुए हैं. यू कैन सी द सेक्शन. सेक्शन 1, जब ये वाले फॉर्म का फिल कर जाता है इंफॉर्मेशन, देन ओनली द चाइल्ड विल गो ऑन द सेकेंड सेक्शन. जैसे क्वेश्चन 1 पेपर नंबर 1 हो जाए, मान लीजिए हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एक ही का गूगल फॉर्म है. हिस्ट्री का सेक्शन बच्चे ने पूरा कर लिया. सेक्शन 2 इज ऑफ ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी में चला गया. ज्योग्राफी का सेक्शन पूरा कर लिया, देन ही मूव्स टू सिविक्स. तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी दोनों हो गया. लिटरेचर के लिए लिटरेचर एंड ग्रामर हम बना सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट. पे रखा और मैंने यहाँ से इस वाले क्वेश्चन पे मैंने सेक्शन लगा दिया. नाउ माय क्वेश्चन इज इनटू अदर सेक्शंस. कैन यू सी? ये एक तीसरा सेक्शन हो गया जहां पे वीडियो बेस्ड क्वेश्चन है. ये सेक्शन अलग हो गया. मैंने यहाँ लिख दिया वीडियो बेस्ड क्वेश्चन. So clear? Yes. Any doubt? मैं सिर्फ बोल रही हूँ या किसी को समझ में आ रहा है? सब शांत है. मैम आ रहा है समझ में. यस मैम, आ रहा है. आ रहा है मैम. ध्यान से देख रहे हैं ना एक्चुअली. आ रहा है. ऐसा तो नहीं कि बहुत बोरिंग हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है. आ रहा है मैम. सबको सब कुछ आता है, मैं फालतू बता रही हूँ. आगे बढ़ जाओ. No, ma'am. Okay. So this is clear. Now I am moving to response sheet. Question ये वाला section पूरा हो गया. I am moving to response sheet now. Now whatever form they have filled, I want a response sheet from them. जैसे ही बच्चों का टाइम ओवर हो गया, we close this. We all know that response sheet अगर हमें एक नया क्रिएट करना है response sheet, we can create a new from here. But if जैसे मैंने टेस्ट 1 लिया, अब टेस्ट 2 के मार्क्स मुझे टेस्ट 1 वाले ही फाइल में डालना है, तो यहाँ पे किया तो यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन हाईलाइट हो गया. अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगी किस वाले शीट में मुझे चाहिए. मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया एक शीट, उसका शीट 1 टेस्ट 1 होगा. एक फीडबैक आवाज ब्रेक हो रही है. फाइल बनेगी. आवाज ब्रेक, आपकी आवाज बहुत कट रही है. आवाज कट रही है. 1 मिनट, लेट मी चेंज. आई होप अब नहीं कटेगी. मैं मोबाइल डेटा पे आ गई. ठीक है. अब मैंने
कोई भी सेलेक्ट कर लिया स्प्रेडशीट, उसके शीट 1 शीट 2 में जो भी शीट होगा उसमें एक नया शीट बना करके वो आपका रिस्पॉन्स उस पे चला जाएगा। स्मिता मैम इसको Clear है? रिपीट करिए इफ यू अच्छा। वांट द सेम यस थिंग। ऑफ कोर्स। रिस्पॉन्स शीट की बात है, जब हम रिस्पॉन्स में जाते हैं वी जनरली क्लिक ऑन क्रिएट स्प्रेडशीट और न्यू क्रिएट कर लेते हैं, इजंट इट? बट इफ इट इज अ पीए, हम पीए ले रहे हैं गूगल फॉर्म पे, ठीक? तो पीए के लिए एक मैंने जब फर्स्ट पीए लिया तो एक शीट बना लिया, उसमें मेरे मार्क्स बच्चों के आ गए। हर टाइम नया शीट क्यों बनाना? वी विल गो फॉर सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। सेलेक्ट किया एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट और यहाँ पे सेलेक्ट हाईलाइट हो गया, हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। अब पीए का जो भी पेपर है, जो भी फाइल है, यू मस्ट बी नोइंग द फाइल नेम, select that file name and you select the data there. Let me take some, as I don't have a response here, कोई भी एक शीट ले लेंगे, मान लीजिए ये सब टीचर्स के ही रिस्पॉन्स शीट्स हैं। ओके, मैंने उस पर लिंक कर दिया। ओके, दैट मीन्स दैट फाइल इज नॉट माइन, इट वाज शेयर्ड, दैट इसीलिए वो लिंक शेयर नहीं हो पा रही है वहां पे, वो मेरी फाइल होनी चाहिए, ठीक है? लेट मी चेक। अब ये बैच वाले बैच 2 पे लिंक हो गया। यू कैन सी मैंने एक फाइल बनाई थी पहले और इसी में दूसरा फॉर्म ऐड हो गया। कैन यू सी हियर? मैंने पहले एक रिस्पॉन्स शीट पे क्लिक किया, उस पे क्रिएट कर लिया न्यू, उसी पे मैंने जब दूसरा किया लिंक करने के लिए सेलेक्ट द रिस्पॉन्स शीट, तो दूसरा भी यहाँ पे बन गया, फॉर्म 1 रिस्पॉन्स, फॉर्म 2 रिस्पॉन्स। कैन यू सी हियर? यस मैम। यस मैम। तो इस तरह से आपकी एक ही फाइल में अलग अलग टैब्स में, अलग अलग शीट में आपका आ जाएगा। जैसे PA1 के मार्क्स एक शीट बन गई, शीट 2 में PA2 के मार्क्स आ गए। सो डोंट गो फॉर न्यू शीट्स, एक ही जगह आपका स्टोर हो जाएगा इस तरह से सारे रिस्पॉन्सेस। क्लियर? ओके, यस मैम। now so after response sheet download the response, CSV की तरह से डाउनलोड करेंगे, you will get the email IDs and all, उस तरह से हो जाएगा। now going for setting, setting में when you make a quiz, अभी तक you can see क्वेश्चन में मार्क्स कहीं नहीं आ रहा था, हमने जो भी क्वेश्चंस बनाए उसमें मार्क्स वाला चीज कहीं नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम सेटिंग पे गए, हमने इसको किया क्विज, आप क्वेश्चंस पे आएंगे तो देखिए मार्क्स रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे ये पॉइंट्स दे रहा है, 0 पॉइंट, Yes, 0 ma'am. पॉइंट दे रहा है, पॉइंट्स दे रहा है यहाँ पे। तो हमने इसको अब क्विज बनाया। अभी तक वो सर्वे फॉर्म था जब तक हमने इसको क्विज की तरह से ओपन नहीं किया। जैसे ही क्विज बनाया तो वो हमारा मार्क्स ले लिया। अब नाउ इट इज आस्किंग इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन you want your child to get the result after the submission only. Yes, Smriti ma'am. Smriti ma'am.
I think by mistake. Okay. You want your child to get the marks just after the submission. So you go for immediately after each submission. लेकिन अगर आपने वहां पे शॉर्ट आंसर्स दिए हैं या पैराग्राफ राइटिंग दिया है या फाइल अटैचमेंट दिया है, तो वो आपका चेक हो नहीं सकता ऑटोमेटिकली. उसको आपको मैनुअली चेक करना होगा, तब मार्क्स देना होगा. सो यू कैन गो फॉर लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू. ओके. Respondent aren't allowed to open the tab or other application while taking the quiz. कोई और टैब न खोल पाए गूगल फॉर्म करते वक्त, उसको लॉक मोड में डाल दीजिए. So you will not be able to open another tab to see the answer. So this option works only for the Chromebook. ठीक है, क्रोम के साथ अटैच्ड है. ये सब अभिलाषा मैम. मैम ये कर रहे हैं कि अभी जो आपने बताया है लेटर आफ्टर वाला, हाँ, तो अगर उसको कर रहे हैं तो मल्टीपल चॉइस वाला जो है उसका ले लेगा ना? हाँ, उसका ले लेगा. ओके. लेकिन जो आपके शॉर्ट आंसर है उसको मैनुअली चेक करके हाँ, वो उसको भी आपके check मार्क्स देने पड़ेंगे. ओके ओके. ठीक है. पॉइंट वैल्यू, बच्चों को पॉइंट वैल्यू दिखता रहे कि किस क्वेश्चन का कितना मार्क्स है, वो ऑन कर दिया. अब डिफॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट 0 दिख रहा है यहाँ पे. अगर हमने यहाँ पे कर दिया, मेरे ईच क्वेश्चन मुझे मालूम है कि 2 मार्क्स के होने हैं, मैंने यहाँ से 2 मार्क्स कर दिया. अब ऑटोमेटिकली मेरा जो फॉर्म है वो 2 मार्क्स लेता रहेगा. यू कैन सी हियर. Let me go to this question only. See, let me refresh it as I have set the settings. For every new question. Okay. I am going and creating a new question. I don't know why it is not taking, but it will take. जब हम डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 2 कर देते हैं, we added default question point goes to value, वो 2 ले लेता है. ठीक है, अभी 0 ले रहा था, we can take it 2 और 1, तो वो ले लेता है. Now collecting email, you want कि अपने आप ही ईमेल आ जाए. ईमेल एड्रेस रिस्पॉन्स शीट में हो जाएगा. रिक्वायर्ड टू रिलीज ग्रेड मैनुअली, आप ग्रेड मैनुअली कर सकते हैं, आपका रिस्पॉन्स शीट पे आ जाएगा. सेंड रिस्पॉन्डर अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स, जो भी बच्चे ने टेस्ट दिया है उसके आंसर के साथ एक कॉपी उसके पास पहुंच जाए. कभी कभी हम फॉर्म भरते हैं तो हमारे पास उसकी सेम कॉपी जो हमने लिखा होता है फॉर्म में, वो कॉपी हमारे पास आ जाती है, तो वो ऑफ की जगह ऑन होता है. ठीक है. अलाउ रिस्पॉन्सेज एडिटिंग, आप रिस्पॉन्स को फिर से एडिट कर पाए, ये हम लॉक रखते हैं. साइन इन, यहाँ पे हम डालते हैं कि रेस्ट्रिक्ट यूजर, अगर हमने कर दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल वाला बच्चा ही कर पाए तो ऑन कर दिया. इसको ऑफ कर देंगे तो वो लिंक कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी मेरे गूगल फॉर्म को भर सकता है. ये टेस्ट में हम लोग जनरली करके रखते थे कि बच्चा किसी और के लॉगिन से फिर ना कर पाए, एक अटेम्प्ट ही करे. लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, जब हमने ऑन कर दिया तो बच्चा सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स दे पाएगा, उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट नहीं करेगा. उसमें लिख के आएगा कि यू हैव ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म. टोटल साइज लिमिट आप फाइल अपलोडिंग के लिए डाले हो तो यू कैन क्रिएट इट 1 GB 1 TB MB, जो भी वहां से सेट करते. ठीक है. मैनेज हाउ द प्रेजेंटेशन लुक लाइक, उसकी सेटिंग आप कर सकते हो. प्रोग्रेस बार दिखे, क्वेश्चन सफल हो जाए,
कंफर्मेशन मैसेज आए कि योर रिस्पॉन्स इज रिकॉर्डेड, ये फिक्स्ड है। विल मीट इन नेक्स्ट टेस्ट, कुछ भी डाल सकते हो। थैंक यू डाल दिया, सेव कर दिया, ठीक है। शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, हमें दूसरा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, ऑफ कर दिया। रिजल्ट समरी उनको नहीं दिखाना है क्योंकि शॉर्ट आंसर्स भी हैं, तो क्लोज कर दिया, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स हम इसमें कर देते हैं टोटल। दिस इज क्लियर? एनी डाउट टिल हियर? नो मैम, तो आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है। एक मिनट, मैम आपका Okay. माइक ऑफ है शायद। दिस इज क्लियर नाउ? एनी डाउट टिल हियर? नो मैम, बस आप No, ma'am, no. आवाज कट जाती बार बार बीच बीच में, या तो मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है या फिर पता नहीं क्या हो रहा है आज। सबके पास कट रही है, अब तो नहीं कटना चाहिए। आई एम ऑन मोबाइल नेटवर्क। तुम्हारे एंड से प्रॉब्लम हो रही होगी। अभी नहीं कट रहा है मैम, इट्स ओके। Okay, now setting is done. Now coming on add-ons. अब इसमें हम add-ons ले सकते हैं, Certify M, Form Limiter, ये सब लेवल 2 पे है, ये अभी हम टच नहीं करेंगे add-ons के लिए। Then ये थीम मैंने बता दिया। This is the preview how your form looks. You can see from this preview. This is the form, how it looks. You can see it. Then undo and redo. आपने जो गलती किया है उसको undo redo कर दीजिए। Send पे जब आप जाते हो तो you can create a link from here. जनरली लोग बड़ा लिंक ले लेते हैं, हमेशा लिंक को शॉर्टन कर देना चाहिए, हमारी लिंक छोटी हो जाए, लिंक बड़ी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, वरना कोई भी इधर उधर कुछ भी हिल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। शॉर्टन द URL and then copy and send it to your student. After sending, there are more options. You can make a copy, you can move it to the trash, get pre-filled link. कोई पहले से filled है उससे link करना है, print, add collaborator, these all you know. Script editor, add-on, these are all in second level. अभी नहीं। So for level 1, it is done. Yes, रानी मैम। मैम जो ये अभी आपने लिंक और ये वाला बताया है, वो सब सेकंड में। नहीं, ये जो भी आपने लिंक और ये सब बताया कि कहाँ पे, एक बार प्लीज फिर से बता दीजिए जहाँ पे आप स्टेप में थी। ये वाला? हाँ, जो भी आप Send बता में लिंक सेंड करते हैं ना, हमें ये फॉर्म मेल करना है तो ईमेल एड्रेस डाल दिया, हमें ये फॉर्म की लिंक क्लासरूम में पोस्ट करनी है तो लिंक लिया, शॉर्टन किया, लिंक को छोटा किया, कॉपी किया इसको और क्लासरूम में पोस्ट कर दिया। क्लासरूम में कैसे पोस्ट करते हैं? क्लासरूम क्रिएट, मान लो असाइनमेंट है, असाइनमेंट, और ये लिंक, लिंक के साथ ये लगा दिया, यहाँ पे लिंक पेस्ट करके ये फॉर्म यहाँ अटैच हो गया, ठीक है। यस मैम। स्मिता मैम, एक क्वेश्चन, ये आपने असाइनमेंट में डाला है, हाँ। तो इसमें बच्चों को टर्निंग चाहिए होता है बच्चों का, तो इसे तो हम मटेरियल में भी डाल सकते हैं, तब भी बच्चे एकदम डाल सकते हैं मैम, गूगल फॉर्म हम मटेरियल में डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि पहले हम लोग करते थे तो अगर गूगल मटेरियल में ही डालते थे। लेकिन अगर जैसे अभी हमने टेस्ट लिया, ठीक है, गूगल फॉर्म को हमने टेस्ट में ले लिया, लेकिन हमें गूगल फॉर्म में भी तो मार्क्स डालने पड़ते हैं ना, तो मटेरियल होगा तो आप मार्क्स नहीं डाल पाएंगे गूगल फॉर्म में, अरे गूगल क्लासरूम में शीट से ले लेंगे, स्प्रेडशीट से, तो मार्क्स डालने का ऑप्शन नहीं आएगा ना मैम, मटेरियल में तो मार्क्स डालने का ऑप्शन नहीं आता है ना। हाँ, मार्क्स का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपको मार्क्स डालना है, आपके स्नैप टेस्ट का मार्क्स डालना है, तो एज अ मटेरियल नहीं देंगी ना तब आप, ओके, तब एज अ असाइनमेंट ही देंगे, क्योंकि फिर वो मार्क्स का ऑप्शन नहीं आएगा।
हाँ, जब मार्क्स नहीं चाहिए होता है हमें अलग से, मतलब बच्चों को नहीं शो करना है, बच्चों को नहीं शो करना, यू कैन गिव इट एज अ मटेरियल। मटेरियल। ठीक, ओके, ठीक है, ड्राइव से भी तो कर सकते हैं। डन। सो माय गूगल फॉर्म इज कंप्लीट। 5:55 अभी हो गया। आई थिंक आई विल टेक ओनली वन टॉपिक टुडे, दूसरा टॉपिक नहीं ले पाएंगे, या हो सकता है कंप्लीट भी हो जाए, क्योंकि गूगल स्लाइड में बहुत कुछ नहीं है। ओके, सो माय सेकंड टॉपिक इज टुडे गूगल स्लाइड। गूगल फॉर्म में कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, देन आई प्रोसीड। एनी डाउट? नो मैम, बच्चों को नंबर जैसे मिल जाए तुरंत, जो है हम लोग को चढ़ाना ना पड़े एक एक बच्चों को, तो उसको ड्राइव से भी तो कर नहीं सकते मैम, हैं। चढ़ाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो नहीं आपको नहीं गूगल, चढ़ाना पड़ता है। तब आपको गूगल क्लासरूम में जाके फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। ड्राइव से डायरेक्ट करते हैं। आप क्लासरूम के अंदर ये प्लस दिख रहा है ना? नहीं मैम, ड्राइव पर जाइए, ड्राइव पर जाइए, वहीं पर जो ड्राइव ड्राइव पे है। गए, हाँ हाँ, तो यहाँ जो गूगल फॉर्म वगैरह रहता है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए, वहाँ तुरंत आ जाता है। फिर हम लोगों को बच्चों का नंबर नहीं चढ़ाना पड़ता है। मैं समझी नहीं। क्लास में जाइए मैम, क्लास में जाइए, क्लास क्लास में में, जहाँ, हम क्लास में हैं, बोलिए। हाँ ड्राइव पर जाइए। हाँ, और यहाँ से अभी जो आपका रिसेंट था फॉर्म, रिसेंट वाले पर क्लिक करिए। हाँ, ये देखिए बैच 2 करके आया है, इसको करिए, क्लिक करिए, बैच 2 को क्लिक That she करिए। knows, I think, ma'am. Import जो marks हम import करते हैं स्मिता मैम, she's talking about that. अब तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना मैम, वो CSV फाइल से इंपोर्ट करते हैं। ओके, वो इस फाइल से नहीं करते, वो CSV फाइल से डायरेक्ट जाता है, ओके, वो नॉर्मल रिस्पॉन्स शीट से नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग तो नॉर्मल उससे ही करते हैं स्मिता मैम। हाँ मैम, हम लोग करते हैं। नॉर्मल उससे क्या चला जाता है? हाँ, बच्चों का करते हैं, नंबर वो डायरेक्ट केवल रिटर्न करना रहता है। क्लासरूम में आ जाता है मार्क्स। अच्छा, एक मिनट। अच्छा चलिए, मैं आपसे बाद में पूछ लूंगी उस चीज को, ये कैसे करती है। जनरली हम लोग जो है वो CSV फाइल डाउनलोड करते हैं उसको और वहां से लेते हैं, क्योंकि हमें ईमेल आईडी भी तो चाहिए ना बच्चों की, तभी तो वो कनेक्ट करेगा गूगल क्लासरूम के ईमेल आईडी से। ईमेल आईडी भी आ जाता है मैम। तो सारा टोटल मार्क्स दे देता है वहां पे। यस मैम। हम लोग तो CSV फाइल से किए हैं मैम, एक बार हम पूछेंगे रिस्पॉन्स शीट से कैसे करते हैं। रिस्पॉन्स शीट हम रखते जरूर है, लेकिन उसको कन्वर्ट करते हैं CSV में। अच्छा ठीक है, अच्छा, ठीक है, कोई तो बात आई विल चेक। ओके ओके। Okay. So coming to Google slide. Google slide checklist is you have to learn how to add link to a presentation, adjust the color, font and theme, add video to a presentation, add an image to a presentation. This I think everybody knows. Let me close this. And same for slide.google.com ओपन हो जाएगा, या तो आप 9 वॉफल्स में जाइए, ये वॉफल्स है 9 डॉट्स, यहाँ जाइए और यहाँ से स्लाइड खोलिए, या फिर प्लस साइन पे जाइए ड्राइव में, सेम जैसे डॉक बोल रहे थे, in the same way you can go. If you want any ready-made template, you can select the template. You have a very big gallery here, you can select it. There are more than this gallery also, other options are also there, you can select from there also. Now blank, I am opening a blank one. Now you all get this type of things. आप उसको डिलीट करते हो, इसको हटाने के लिए
आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, इसके लेआउट में जाइए, सेलेक्ट द ब्लैंक वन इफ यू वांट, इट विल बी अ ब्लैंक वन, नो नीड टू डिलीट एनीथिंग. ठीक है. नाउ योर थिंग वाज एड अ लिंक टू अ प्रेजेंटेशन. कोई भी लिंक हमें प्रेजेंटेशन में लगानी है. सो दिस इज अ प्रेजेंटेशन. लाइक हम लोग लिंक लगाते हैं और पीडीएफ में इनवाइट सेंड करते हैं. हमने कोई भी इनवाइट ले लिया. लेट मी ओपन अ इनवाइट हियर. Wait. Open presentation में invite. ये एक इनवाइट मैंने बनाया किसी को सेंड करने के लिए. अब इसमें हमें हमेशा मीट का लिंक लगाना होता है. तो यू इंसर्ट अ इमेज. Insert a image. How to insert? I told you. You can go with the Explore also. You can search Meet icon. Now I have to select any of the icon from here. I will select and insert. So this is inserted. I will drag and make it small. I will put it here. स्मिता मैम, ये आइकन बिना आपने अच्छा मीट आइकन डाला है. ओके ओके फाइन फाइन फाइन. ठीक है. कोई भी पिक्चर ले लीजिए मैम, गर्ल बॉय कोई भी ले लीजिए. Now after selecting this, insert link. Can you see here? You have to click on the insert link. यहाँ पे आप उस मीट लिंक को डाल दीजिए एंड क्लिक ऑन अप्लाई. ठीक है. मान लीजिए मेरे मैम एक इसका बार ही फिर से लिंक बता दीजिए. वो आइकॉन को मैंने छोटे ये करने के बाद आपने क्या किया? हाँ आइकॉन का जो रीसाइज किया उसके बाद क्या किया मैम? हाँ बता रहे हैं. ये आइकन को रिसाइज किया. इंसर्ट में जाएंगे तब भी यहाँ पे लिंक ऑप्शन दिखेगा. और अगर शॉर्टकट लेना है तो यू हैव अ लिंक ऑप्शन हियर ऑल्सो. यू सेलेक्ट वट एवर इट इज, कंट्रोल वी. मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया. ठीक है. नाउ इफ आई गो फॉर अ स्लाइड शो, माई स्क्रीन इज विजिबल नो, यस मैम. and I click on this, I can go for a meet. ओके. HTTP दिखा रहा है मुझे, ये लिंक गलत दे रहा है, इसलिए लिंक मेरे गलत आई है. यहाँ से मीट लिंक ये है, कंट्रोल सी. I am on this call, maybe because of that it is not opening. Otherwise it will open. Return to home call. मैं किसी और चीज की लिंक लगा दे रही. रुकिए मैं एक और खोलती हूँ, उसकी लिंक ले लेती हूँ.
It is not taking right now the link. Maybe I am on the link, that is why. But आप किसी की भी link इसमें डाल सकते हैं as we do it for their wait. Let me present the screen maybe तबले. But it takes. हम लोग link ऐसे ही डालते हैं जब Google Meet की डालते हैं. Maybe I am on the Meet, that is why it is not taking. इस तरह से हम Meet डाल करके लिंक डाल करके हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं एज अ PDF. अगर हम JPG में करेंगे तो दैट लिंक वोंट वर्क. जब हम PDF में कन्वर्ट करेंगे दिस लिंक विल वर्क. So let me download it as a PDF. I am sharing this link. ये PDF हो गया और I am sharing this link or a picture in the classroom. I am attaching it here. Upload. You all in the classroom, you can check. PBL की मीट वहां पे चली गई है. I have assigned it. You can check it from there. कहाँ लगाया? कोई लिंक नहीं है मैम. मैंने कहीं लगा के पोस्ट किया है. किस क्लासरूम में पोस्ट कर दिया? You have sent to another classroom. I think so. Okay, wait a minute. मैं इस क्लासरूम में लगा रही हूँ. Create, material, upload, PBL Meet, open, demo, topic, demo. Now please check. It is there. You can click on this and you can reach there to the classroom में है. Yes, ma'am. ठीक है. So this is how you can put the link also in a classroom. कोई भी मीट लगा करके लिंक लगा करके you can put it there. इसमें किसी पिक्चर पे लिंक लगा करके हम और भी काम कर सकते हैं. Like I have inserted an image of a girl. Search from web. मैंने एक पिक्चर लिया गर्ल की. मैंने इंसर्ट कर दिया इस गर्ल की पिक्चर को. And now I want this should be inserted to any of the video. कोई रिलेटेड वीडियो है मैंने ले लिया इसमें. हैप्पी बर्थडे मान लो लेते हैं. I have taken the link. I went again to that picture, selected that picture, taken the link, put the link there, apply. So now when you slideshow this
and you click on this picture only, you will reach to that video. In the same way as you were going on the Meet. So this is how you can insert the link to a picture. Now, coming to the next topic, adjust the color, font and theme. Now, when you are creating a presentation, आपने presentation बनाया, आपने insert किया word art, ये वर्ड आर्ट मेरा यहाँ पे आ गया. इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर ले, इसको ऊपर कर दिया. Now I want to fill color in this. I have selected a red color or yellow color. I want a border of this color to be red. I want to change this into some other format. इसको मैंने छोटा कर दिया. अब now I want a background of different color. I want to change the background. I want to select any color. Okay, I don't like this color. I want some image. I will go on the image. I will select the background. I want this type of background here. I have selected the background. Done. See, the girl is in the same background. Now you want to change the color. This color is not soothing. So you can change the color also. Change the outline of this. You want a thick outline there. You take a thick outline. See. You want the outline to be a bordered one, dash, dash, dash. You can take dash, dash. You can insert a text box also. Let's have a party. Now you want to change the color of all text. You can change the color of the text. अगर इसमें से लगता है you want to increase the size, increase the size. Okay, you want this text L to be in a different color. You select the color here. You want E to be different color. Select the E. Make it different color. T you want in blue or green. You can select. So you can change each letter colors. Then you can go for a theme also. You can select the theme from here. This is the theme. When you select a theme, whatever theme it is, let me insert a new slide. You can check the theme. Because we have a background here, that is why theme is not visible. If you want to work on this theme, you can check the theme here. You can select any of the layout from here and you can work on this. Insert the picture, the same picture if you want. Control C, Control V. The picture is pasted and you have the background. And when you go and insert a new one, you will get the same theme. You don't have to change many times the background. You can go and continue with the same theme. Whichever theme you want, you can change and make it that. Okay, you can change the color of the theme also. You want to change the background color. The theme should be same. You can change it. See, the same theme is there. Can you check? So this is theme.
Okay. Then add a video to a presentation. Now, if you want to add a video here, insert, you can go to video. You can search any video, or if you have on a Google Drive, you can take it from there. If you don't have, or you have selected, like अगर ये मुझे बर्थडे वाला ही मैंने ले लिया, I have already copied the URL, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. Copy. मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया URL. This video appeared here. Select the video and insert it. When you insert a video, you change the layout if you want. I want a plain one, so I've taken a plain. इसको size increase कर दिया. Now, this video is of 26 seconds. ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. You can see, check the line, time. It is of 26 seconds. Now you want this video only for 5 seconds, or so what you have to do is you start a video. Click on start button. You start a video. You want the video from here. So use current time. See, from 4 seconds it will start, and you want your video to end at this time. 16 सेकंड पे वो वीडियो खत्म हो जाए. 4 सेकंड पे शुरू हो, 16 सेकंड पे खत्म हो जाए. Now what you have to do? Now check it. It is going to be a very small video now. 22 seconds से मैंने कम कर दिया. He started from 4 seconds. It finished. पूरा वीडियो नहीं चला. So you can fix the timing also. If the video is of 5 minutes, 10 minutes, and you want only a short period of it, short duration video. So whenever, from wherever you have to start, play the video, use the current time पे click करो. So it will start from there. This is the starting time. And wherever you want to end, use the current time. And कर देंगे. So it will take that duration of the video, that time period video, and then it will play. उतना ही insert होगा, उतना ही play होगा. Add an image. I already told you how you can add the image. Insert image, search from web. You can search it from here. If you want any transparent picture, you can go for transparent. Image of art. You can take the transparent image from here and you can put it there. और ऐसे नहीं लेना है. You can go and search the image here. You will write car. मैंने transparent image लेना बताया था. Go to tools, images, tools, transparent. You want a GIF or a clip art, you can take it from here. You can check the car GIF, it is moving. Now copy the URL address from here, image address. Come to your presentation. Now you want
to insert. Let me insert a new slide. Now you want an image to be transparent. You go with image by URL, insert that picture. Now this moving GIF will be there. No need to even download that picture. मैम ये मूविंग GIF वाला एक बार प्लीज फिर से बता दीजिए. मूविंग पिक्चर हम लेते हैं ना, GIF इज अ मूविंग पिक्चर, एनिमेटेड वीडियोस. जैसे हमने यहाँ पे बटरफ्लाई ले लिया, ठीक है. अभी ये इमेजेस है, JPEG है. अब मुझे यहाँ पे GIF लेना है जो थोड़ा एनिमेटेड होता है. ट्रांसपेरेंट लिया पहले मैंने, टाइप में गए, मैंने GIF लिया. सो आई विल गेट अ मूविंग butterflies. See, can you see? Now right click here, copy the image address, put it on the slide. इसको छोटा कर देते हैं. Insert image URL. Can you see? When you make a slideshow also, it will move. Clear? So slide is done. Anything you wanted to know in the slide, you can ask. और सारी चीजें तो आपको आती है. You can duplicate the slide by Control D also, and from here also. If you want a new slide, Control plus M. Skip a slide. जैसे मुझे presentation के वक्त ये वाली slide present नहीं करनी है, so you can go and skip that slide. वो देखिए क्रॉस हो गया. जब हम presentation चलाएंगे तो वो slide मेरी नहीं दिखेगी. नहीं आई? ये स्किप हो गई है. नेक्स्ट पर करेंगे तो वो नहीं आएगा मैम. नहीं, ओ जो ढकना है उसको स्किप कर दीजिए, हाइड हो जाएगी वो. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर स्लाइड. कोलैबोरेशन यू ऑल नो. शेयर कहाँ से करते हैं? नेम इट फर्स्ट. पहले प्रेजेंटेशन को नेम देंगे और उसके बाद सेव करके शेयर कर देंगे. सेम जितना शेयरिंग वाला जो ऑप्शंस मैंने डॉक में बताया, शीट में बताया, वो सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं. यस, यू वर सेइंग समथिंग संगीता मैम. Yes, I was saying कि Google Suite जो है, if you can take it on another day. It is almost 6:30. हाँ, no, I will not take. The next one I will take on the next day. Google site I will take on the next day because it is a long topic. Yeah. ठीक है? So I will be covering only 2 topics today. It is already 6:24. अगर कुछ और पूछना है, you can ask. We will meet on day. स्मिता मैम, इससे हट कर है एक चीज. हाँ जी मैम. ये कह रहे हैं कि जैसे हमें पिछले साल के बच्चों का वर्क वगैरह डिलीट करना है, सब कुछ जो उनका स्लाइड है या जो कुछ भी है, तो कुछ ऐसा तरीका है सारे बच्चों का एक साथ कर